Hello everyone, myself Uttam Rathod, your host come Tojada. So, today we have with us Rama Swankar boss. Hello, boss. Hi Uttam, how are you doing? Nice, fantastic, boss. And, boss, can you please tell our viewers more about yourself? Sure. So I'm a final year student in electronics and communications in VTech, and I did my internship last year at the Indian Air Force Station as an application developer. This year I have done my summer internship at IIT Jodhpur as a research intern in embedded systems, and I have grabbed a full-time opportunity at Cvent as a software engineer. Okay, so, boss, one question that I always ask in my podcast, Right. how was your experience at MNIT Jaipur? कैसा था MNIT Jaipur का experience और what is the most memorable moment of your college life? So first of all, this is my final semester Hmm. here because the next semester I'll be going for intern. So Okay. मेरे लिए तो the most memorable part was definitely meeting the people Hmm. that I met, Hmm. making good friends and learning a lot apart from academics as well. क्योंकि the people they are the people are the ones who teach you the most rather than Hmm. what you study in class and everything. And for me, that was the most memorable. एंड अदर देन दैट द एक्सपीरियंस आई डेफिनेटली क्योंकि कॉलेज लाइफ एक ऐसी पीरियड होता है जब व्हेन यू एक्सप्लोर द मोस्ट व्हेन यू नो अबाउट योरसेल्फ द मोस्ट मेरी क्या स्ट्रेंथ्स है व्हाट आर माय वीकनेसेस व्हाट आर माय कैपेबिलिटीज मैं ये एज यू हैव स्टार्टेड दिस पॉडकास्ट Hmm. सो आई थिंक as for you as well you'll be learning a lot of things so Definitely. right so मेरे लिए it is like कि just getting into anything and you will never regret it. For me, it is like that. तो मैंने काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर करी एंड आई नेवर रिग्रेटेड एनी वन ऑफ देम सो फॉर मी लाइक दैट वाज हाउ माय एक्सपीरियंस वाज ओके सुबह जैसे कि व्हेन एवरीवन एंटर्स द कॉलेज लाइफ तो बहुत राइट सारे होते हैं कि इंट्रोवर्ट होते हैं कुछ एक्सट्रोवर्ट होते हैं कुछ ऐसे होता है तो आप कैसे थे और मतलब किस तरह का चेंजेस आए पॉजिटिव चेंजेस आपके अंदर सो मैं तो बहुत ज़्यादा लाइक जो इंट्रोवर्ट का सबसे ज़्यादा हाईएस्ट लेवल होता है वाज दैट हम्म. एंड इवन लाइक फॉर सेइंग यस टू दिस पॉडकास्ट आई डिड रीथिंक कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए ओके. सो आई एम स्टिल अ लिटिल बिट ऑफ इंट्रोवर्ट बट हम्म. डेफिनेटली there's a difference between being an introvert and being having that confidence so I think I'm still an introvert but I've definitely built the confidence to show up to these places हम्म. and to be able to have conversations with people हम्म. people like me people who are different than me so I think वो ultimately वो college life कैसे ना हम्म. कैसे कर ही देता है तुमको थोड़ा बहुत खोल ही देता है and तुमको भी open रहना चाहिए ऐसी opportunities के लिए हम्म. once you are open to that automatically then things will fall into their place I think कि मतलब कि व्हेन यू एंटर द कॉलेज लाइफ तो हर एक चीज एक्सप्लोर करो right और लोगों से मिलके कुछ ना कुछ आपके अंदर पॉजिटिव इम्पैक्ट आते रहते हैं. exactly right Okay. So, boss, apart from the academics, what did you do in your college life, like any fest, sports, or any club? So I think one of the thing like एक ऐसी Hmm. ये क्लब्स ऐसी चीज है जो मैंने इतना एक्सप्लोर नहीं किया है मतलब आई हैव बीन इन पार्ट ऑफ फोटोग्राफी क्लब सिंस Hmm. इन फर्स्ट एंड सेकंड ईयर बट Hmm. इट वाजंट अ वेरी एक्टिव क्लब तो थोड़ा बहुत सेशंस अगर कुछ कुछ होते थे आई डिड टेक पार्ट आई डिड लाइक फोटोग्राफी अ लॉट वर्किंग विद कैमरास एंड एवरीथिंग तो जो भी इवेंट्स होते थे आई ऑलवेज यूज्ड टू गो एंड दैन बट क्योंकि वो इतना एक्टिव क्लब नहीं था तो देयर वाजंट एनी इंटरेक्शन विद द सीनियर्स थोड़ा बहुत था बट इट वाज दैट as compared to other clubs जैसे Mavericks, I think they are Hmm. really more active than us और ज़्यादा seniors से bonding होती है. There is a lot of teamwork in that. Yes, And boss. press में भी I've participated a bit जैसे publicity में I've done Hmm. content writing for that. But again, that wasn't something which was very out of my comfort zone because I've done before that. So I think this is one of the things I don't regret it, but I'll definitely recommend juniors को Okay. कि इसको ज़्यादा explore करो. Even ऐसा club है जो you Hmm. feel like क्या पता I should, but just go into them and start taking responsibilities on your own because nobody is going to hand it over to you कि तुम ये काम को ये करो. तो Hmm. थोड़ा खुद को इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है एंड जो इंटरेक्शन क्लब में रह के सीनियर से होता है Hmm. वो कोई किसी दूसरे तरीके से
I have approached my seniors through LinkedIn, हम्म, personally texted them, उनको कॉल किया है जो भी मेरे को इवन एकेडमिकली भी जो भी हेल्प चाहिए होती थी. बट आई सीन माई फ्रेंड्स जो इन क्लब से एसोसिएटेड है या फिर वो इवन इफ दे आर नॉट एसोसिएटेड विद एनी क्लब, वो जनरली उनसे कांटेक्ट में रहते हैं, तो दे हैव अ बेटर नॉलेज ऑफ एवरीथिंग कि कैसे क्या करना चाहिए. सो आई थिंक ये जो एक्स्ट्रा करिकुलर जो एक्टिविटीज होती है, इट इज ऑल्सो रियली इम्पोर्टेंट इन कॉलेज. एंड कोई ऐसा स्पोर्ट्स था जिसमें आप पार्टिसिपेट थे, मतलब कोई No, स्पोर्ट्स? but I did go for like basketball just for a few days, then I quit. कि मुझसे तो yeah. Okay, boss. And boss, can you share something about your projects and hackathons and any Right. other things like this? So I've always been more interested in core as than non-core. So मेरा project का one of the competitions that I participated was again in an hardware hackathon. So इसमें we were a team of 5, and it was also allowed that you can include a mentor. So Meenka ma'am is there in our department. She was also a member of our team, and we basically tried to make an FPGA board. And we made a calculator. So what happens on our normal calculators is it calculates with some speed or something. And Mm, if you've heard of Vedic maths, it's much faster as compared to the normal mathematics, like mm, calculations we use. So we tried to make a calculator using this Vedic maths. So that was one of the competition, basically hardware that we entered in. Apart from them, projects I have always like I have met new people and mm, I ask them what they are doing, and mm, if I find it interesting, I try to do it as well. And again, it is if you are into a club which is like basically handling all these technical things, mm, if you are in design, that is really good thing. mm. So you will get to know what actually is there going on in the industry, and then you can find what projects you can work on. So yeah, that. ओके, सो बॉस आपने जैसे बोला है कि आप कोर में ज्यादा इंटरेस्टेड थे, तो Right, जैसे आपने एक प्रोजेक्ट बनाया था कैलकुलेटर वाला वैदिक मैथमेटिक्स से। right. ओके, सो आपने जैसे हैकेथॉन, ये हैकेथॉन के लिए बनाया था या फिर एक प्रोजेक्ट ही था आपका? No, no, this was for a competition जो एक ओके, हार्डवेयर हैकेथॉन था उसके लिए. तो इसका क्या रिस्पॉन्स रहा, मतलब आप उसमें कंपटीशन में जीते थे या फिर? नहीं नहीं no, but हम्म, we went for 2 rounds, like there were हम्म, multiple rounds, 4 rounds. So we ओके, cleared the first round with the idea PPT सब हम्म, present करना था, हम्म, and then we moved to the second round and then we got eliminated. ओके। सो एलिमिनेट होने का क्या मतलब, कोई रीजन, किसी ने और ने कुछ और बेटर बनाया था या फिर कुछ और था इसका रीजन? I think because क्योंकि जो ये idea है, it was definitely new, but nobody is हम्म, that much concerned about this idea कि if even if you make calculations a little bit faster, हम्म, ये कोई like बहुत ज़्यादा real world impacting project नहीं था, तो I guess this ओके। was the reason. क्योंकि मुझे एक साथ ही एकदम न्यू आइडिया था एक वैदिक Right, मैथमेटिक्स से करने का। right. ओके, सो बस let's talk about your internship experience. Like Okay, you got an intern at an Indian Air Force. right. तो मतलब वहां पे आपका एक्सपीरियंस कैसा था और आपका क्या रोल था उसमें? Okay. So हम्म, दो जो इंडियन एयरफोर्स इंटर्नशिप है दैट टुक प्लेस एट द एंड ऑफ माय सेकंड ईयर. और जो सेकंड और थर्ड ईयर का जो टाइम होता है 2 महीने का, इट इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल टाइम्स, क्योंकि इसके बाद तुम्हारी इंटर्न शुरू होती है, एक्चुअल इंटर्न्स जो होती है. और जो ये जो समर इंटर्न वाला अपॉर्चुनिटी था, इट वाज ओनली इंटर्न, एंड आई वाज रियली स्केप्टिकल कि मेरे को लेना चाहिए अपॉर्चुनिटी या नहीं. आई वाज इंटरेस्टेड इन कोर, और ये जो एयरफोर्स जो है ये टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री है, एंड माय फेवरेट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इज द कम्युनिकेशन पार्ट. तो मेरे को इंटरेस्ट तो था, बट द रीजन क्योंकि 2 महीने इतना ज़्यादा इन्वेस्ट होने वाला है, ये इंपॉर्टेंट टाइम, आई हैव टू गिव माई टाइम देयर. तो स्केप्टिकल तो थी मैं कि पता नहीं वर्थ इट होगा या नहीं. बट हम्म, व्हेन आई वेंट देयर एंड आई कंप्लीटेड माय इंटर्नशिप, वन रिग्रेट तो बहुत, जो भी मेरी एक्सपेक्टेशंस थी, इट एक्सीडेड ऑल ऑफ माय एक्सपेक्टेशंस, क्योंकि हम्म, इट वाज एन अपॉर्चुनिटी व्हिच वाज लाइक अनपैरेलल्ड. ऐसा कोई कंपनी में जाके तुमको वो एक्सपीरियंस नहीं मिलने वाला है जो एक्चुअली वो स्टेशन में जो तुम एक्सपीरियंस करोगे. सो हम्म, आई थिंक टेकिंग दैट अपॉर्चुनिटी वाज वन ऑफ माय बेस्ट डिसीजंस एवर. ओके, मेरा जो रोल था एक्चुअली, so there are two parts of the internship. First, हम्म,
फर्स्ट पार्ट इज ट्रेनिंग. सो ट्रेनिंग में वो अपना जो भी हाउएवर दे वर्क, जो भी इनका इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, एमएससी मोबाइल स्विचिंग सेंटर्स होते हैं, ऑपरेशनल सेंटर्स होते हैं, वो क्या उनका नेटवर्क है. सो उस टाइम दे वर स्विचिंग टू 5G नेटवर्क्स, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी कुछ चेंज कर रहे थे. सो हम लोगों को वो सब इंट्रोड्यूस किया कि ये हम लोगों का सेटअप है, ये हम लोग हार्डवेयर यूज करते हैं, दिस इज हाउ वी डिजाइन सॉफ्टवेयर फॉर अस. एंड जो हम लोगों के फोन्स में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, जैसे जियो होता है, एयरटेल होता है, that is not allowed in the Air Force centers for security Okay. purpose. And क्योंकि it is a matter of national security, तो हम्म, इससे कोई भी well they are very concerned and they are very serious about it. क्योंकि तुम कोई भी अगर नेट से like let's say WhatsApp पे if I send you something, तो वो that is traceable by your internet service provider and they don't want that. तो इसलिए दे मेक देयर नेटवर्क ऑफ देयर ओन. उनकी हम्म, सिम्स भी अलग होती है, उनके टावर्स भी अलग होते हैं, उनका पूरा मोबाइल नेटवर्क अलग होता है, उनका पूरा कॉल नेटवर्क अलग होता है. दैट इज हम्म, नॉट एक्सेसिबल बाय एनीवन. हम्म, जो भी वो चीज बनाते हैं दैट इज नीडेड टू बी बिल्ड फ्रॉम स्क्रैच. तो जो इंजीनियर्स जो वहां पे थे, इंडियन एयरफोर्स, दे आर ऑल्सो लाइक वो लोग डिफेंस में काम करते हैं, बट दे आर ऑल्सो इंजीनियर. सो आई विल से दैट द रियल इंजीनियर्स आर देयर, क्योंकि वो सब उनको पता है कि they are not allowed to use any kind of internet over there, so they don't copy paste the code or anything. वो सब कुछ हम्म, scratch में आते हैं. They learn how to make this thing और फिर वो अपने सिस्टम के लिए वो चीज बनाते हैं. हम्म, दिस वाज वन ऑफ माय फेवरेट पार्ट्स कि ये टेक्नोलॉजिकल जो डिस्कशंस होते हैं वहाँ पे हर हम्म, हर रोज इतने सारे जो भी कम्युनिकेट करते हैं ऑफिसर्स के, to be able to witness all of that, I think that was really my favorite part was there. And apart from them, even the work that we were assigned, that was really unique. But as again for the security reasons, I cannot reveal what it. And there is a saying, yeah, and we used to like in ourselves, like in our team, we used to say that happens in Air Force, like stays in Indian Air Force. okay. So repeatedly we were warned कि किसी को disclose नहीं करना तुमने क्या काम किया and all that. So what I did, I cannot reveal, but again, the experience that I had, that was हम्म, really, really fun. My project consisted of something which was sort of an app development, and we had other teams which had some sort of work with Python, and then there was another team which totally had their work on core and set. So if you are in second year and if you want to explore, so you have both options, either go हम्म, with hardware and software, but only take this opportunity if you are like somewhat like confident with your skills कि हाँ ठीक है मैंने इतना सीख लिया है, तो मैं अब अपने रेज्यूमे में एक्सपीरियंस डालने हम्म, के लिए, क्योंकि एक्सपीरियंस कम्स आफ्टर, पहले तुम्हारे पास स्किल्स होने चाहिए. डेफिनेटली बॉस. तो अगर तुमने सेकेंड ईयर के एंड तक इतना कर लिया है कि ठीक है, तो लेट्स से अगर तुम सॉफ्टवेयर के लिए प्रिपेयर है तो तुमने हम्म, अच्छा खासा डीएसए प्रिपेयर कर लिया, तो देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दैट. अगर तुमने कोर में तुमने बेसिक्स अपने सीख लिए हैं, जो भी एनालॉग डिजिटल जो भी बेसिक्स होते हैं, हम्म. उसके बाद देन यू कैन गो फॉर दिस. ओके, सो बॉस आपकी ये इंटर्न कहाँ पे लगी हुई थी, सो मतलब? इंडियन एयरफोर्स स्टेशन जो है वो पूरे इंडिया में है. जो जयपुर में इंडियन एयरफोर्स हम्म, स्टेशन, वो सिग्नल यूनिट है. सिग्नल ओके. यूनिट में बेसिकली क्या एक होता है, फ्लाइंग यूनिट. फ्लाइंग हम्म, यूनिट में जो भी एयरप्लेन्स आते हैं जो इंडियन एयरफोर्स से एसोसिएटेड है, जो भी जेट से, तो उनकी कम्युनिकेशन के ऊपर काम करते हैं. हम्म, सिग्नल यूनिट बेसिकली जो भी आपस में एयरफोर्स में जो कम्युनिकेशन होता है यस उसको बॉस. कैसे सिक्योर करें, वो उस पे काम करते हैं. तो सिग्नल यूनिट इज बेसिकली फॉर कम्युनिकेशन, जो कि जल महल, तो इट्स हम्म, इन फ्रंट ऑफ जल महल इन जयपुर. ओके, सो आपकी इंटर्न जयपुर में ही थी. राइट. एंड बॉस मैंने ये सुना था कि इंडियन एयरफोर्स का मतलब आप जहाँ पे भी इंटरव्यू करते हो तो वहाँ के सीनियर कमांडर्स या उनके साथ आपका वो रहता है और नेक्स्ट लेवल वो एक्सपीरियंस रहता है, राइट. लाइक कैसा था वो एक्सपीरियंस? या राइट. तो मेरा जो प्रोजेक्ट था, इट वाज अंडर अ विंग कमांडर. And even during my internship, there was a like some sort of exhibition, तो जिसमें हम लोगों को अपने प्रोजेक्ट दिखाने थे. एंड जो मार्शल थे, जो एयर मार्शल थे इंडिया के, दैट केम देयर वाज पर्सन हु केम टू विजिट, एंड we are like getting all goosebumps and एयर everything. मार्शल ऑफ इंडिया. Exactly. And there were so many officers and there are all those stars on their like
on their uniform, and the uniform was really really good. इनके सबके color coded uniforms होते हैं, हम्म like for wing commanders it is different, for air हम्म marshal it is different. हम्म So, and again, because they are officers, so the confidence and like their discipline and everything, it was like really impeccable. हम्म जो सीरियसनेस से जो लोग काम करते हैं एंड द इंटेलिजेंस दैट दे पुट, लाइक हम्म इट वाज समथिंग सॉर्ट व्हाट वी वॉच इन मूवीज, जो जो जैसे कि क्राइम इन्वेस्टिगेशन ब्रांचेस होते हैं जिसमें काफी ज्यादा सीआईडी टेक्निकल बातें करते हैं, एग्जैक्टली. सो या आई वाज रियली इनटू हाँ सीआईडी, so like initially my expectations were like, yeah, maybe it's हम्म that very cool, and again it fulfilled my all my expectations, right? ओके. सो बस इंडियन एयरफोर्स सिर्फ इंटर नहीं देती है हमारे कॉलेज से, लाइक उसमें प्लेसमेंट के क्या रहता है फिर क्राइटेरिया? राइट, सो क्योंकि इंडियन एयरफोर्स कोई कंपनी नहीं है, तो ओके. उनको कुछ काम करना होता है, उनके हम्म लिए वो कुछ काम असाइन करते हैं, तो इसलिए दे नीड स्टूडेंट्स, क्योंकि जो हम्म अभी रिसेंट हम्म टेक्नोलॉजिकल जो भी स्किल्स है उनसे हम्म इक्विप्ड. As for getting into Indian Air Force, you have to give different exams. There is an exam called FCAT, जो कि government हम्म exam है, तो वो exam दो, then you clear the interview, then you can get Indian Air Force. And there are some other methods as well, जो तुम 12 पास करने के बाद NDA exam होता है, उसके थ्रू जा सकते हो. So there are different ways you can get into it. क्योंकि ये कंपनी नहीं है, तो ऐसे कोई डायरेक्ट मेथड नहीं है इसमें एंटर करने का. ओके. एंड बॉस इंडियन एयरफोर्स का रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या था, लाइक कि कोई सीजीपीए क्राइटेरिया एंड स्किल्स, और कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपने प्रिपेयर करी थी? राइट, तो इनिशियली तो वी वर लाइक सर्कुलेटेड अ गूगल फॉर्म, तो हम ओके. लोगों को अपना रेज्यूमे अपलोड था, तो फर्स्ट स्टेप था वाज सीवी स्क्रीनिंग. उसमें जो भी प्रोजेक्ट थे वो स्क्रीनिंग, एंड देयर वाज सीजीपी क्राइटेरिया विद दैट. तो जो भी आई गेस शॉर्टलिस्ट हुए थे, देवर मेनली 8+ सीजीपी पीपल. तो वी आर शॉर्टलिस्ट, दे हैड शॉर्टलिस्ट अराउंड 10 to 12 पीपल, एंड जो शॉर्टलिस्टिंग आई थी उसके बाद वी वर शेड्यूल्ड एन इंटरव्यू. तो इंटरव्यू शेड्यूल करने में, क्योंकि वो कम्युनिकेशन, तो आई हैड प्रिपेयर्ड ऑल द कम्युनिकेशन सब्जेक्ट्स. उस टाइम तक हम लोगों ने सिग्नल्स एंड सिस्टम पढ़ लिया था, एनालॉग कम्युनिकेशन का पढ़ यस लिया बॉस. था, एंड डिजिटल कम्युनिकेशन पढ़ लिया था. तो जो भी कम्युनिकेशन के मेन सब्जेक्ट्स थे दैट आई हैड प्रिपेयर्ड. एंड जब शॉर्टलिस्टिंग आई, तो देयर हम्म वर मेन पीपल हु वर सिलेक्टेड, एंड देन दो जो थे वो कंडे, तो टोटल वी वर 6 पीपल हु वर सिलेक्टेड. आई वाज वन ऑफ दोस. एंड फिर उसके बाद जो 6 लोग थे उसमें से हम्म वी वर तीन, दो दो के इसमें टीम हम्म डिवाइड थी. वन वाज फ्रॉम अनदर कॉलेज. ओके. So I was in a team of 2 people, and we were assigned separate projects, all of us. And other than that, I think you can, because they also hire for tech roles, so you हम्म can prepare development as well. They really, really like appreciate and give priority to people who are good in web, and more if you are good in app development. At that time, I had taken a course in app development. I was exploring app development at that time. तो मैंने हम्म कुछ projects बनाए हुए थे apps में, which I told them, ओके. and they needed someone to develop apps only. So कैन I डेवलपर. ओके. exactly, yeah. Okay, so like if I want to be an intern at Indian Air Force, so like app development and communication part, core part, या फिर only DSA या इनसे सबसे हो जाता है? ओके, सो दैट डिपेंड्स कि अगर तुम टेक रोल के लिए ही Okay. प्रिपेयर कर रहे हो, इफ हम्म अगर तुमको जाना है वहाँ पे और तुमको ऐसा प्रोजेक्ट चाहिए विच इज इन टेक, तुमको कोई ऐप या हम्म वेबसाइट डेवलपमेंट करनी, तो यू कैन Okay. लीव द कोर पार्ट, दैट इज ओके. यू डोंट नीड टू प्रिपेयर. इवन बेसिकली जो थोड़ा बहुत बेसिक जो क्लास में पढ़ाता है दैट वुड डू. तुम थोड़ा रिवाइज कर लो कि क्या हम्म डिजिटली कम्युनिकेशन कैसा डिफरेंट है एनालॉग से, या फिर हम्म जो काफी बेसिक चीज होती है. दैट इज आई थिंक सफिशिएंट. अगर तुम टेक के लिए कर रहे हो तो सिर्फ देन ओनली प्रिपेयर फॉर टेक. इवन इन डीएसए दे डोंट आस्क मच क्वेश्चंस, क्योंकि हम्म उनको कुछ काम नहीं है डीएसए से, उनको काम है डेवलपमेंट से. डेवलपमेंट. एग्जैक्टली. तो तुम्हारे रेज्यूमे में तुम्हें एक प्रोजेक्ट, क्योंकि सेकंड ईयर तक किसी के पास कुछ एक्सपीरियंस नहीं होता है जो थर्ड ईयर के अंदर, तो तुमको काफी एक अच्छा प्लस पॉइंट मिल जाएगा बाकी लोगों के कंपैरिजन में, अगर तुम वो ऐड कर सकते हो तो. बट अगेन डीएसए इज समथिंग विच इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थर्ड ईयर के इंटर्नशिप के. अगर तुमने डीएसए नहीं किया तो फिर देयर इज नो पॉइंट. ये समझ. Okay. So recently you got placed at Cvent.
राइट। लाइक अब आपका वहाँ पे क्या रोल होने वाला है, और कि मतलब कि कैसा एक्सपीरियंस रहेगा, मतलब आगे क्या? Okay, so Cvent, हम्म। I got selected as a software engineer. Cvent ओके। is basically a company which manages events and everything, and they have a software for all of these things. कि अगर कोई भी मेरे को event organize करना है, तो this is the list of people, and what are the hotels that I can book for this event and everything. So there are a lot of tasks, and all of those are actually managed by the software itself, by the company. If you're giving that new. So, for my interview, the same like everything I had prepared a DSA and then some core CS subjects, SQL, DBMS, and everything. And as for my role in the company, they asked me for a preference, so I give the preference of cyber security. You will also have a course in computer networks and security. I think in your fifth semester, I guess. So हम्म। during my fifth semester, I was really into this subject. I found it very interesting and I explored it more. So I think, like I asked them if when they asked me, so maybe if I can, because there in the website there are a lot of transactions that you have to take place, and if हम्म। you are doing a transaction, it has to be secured. यस So बॉस। right. So I think that would be my role in Okay, so was like first you got an intern at Indian Air Force, that. Right. like core internship, and Exactly. then a software placement. Right. So ये आप शुरू से प्रिपेयर करते आ रहे थे या फिर एक साथ स्विच किया कुछ? Okay. So I think I've switched a lot between core and non-core. ओके। I took when I was in third semester, I took a हम्म। course from Coding Ninjas in DSA. क्योंकि हम्म। uh, like third sem में is the if you start early, then definitely it is It a will lot of help. advantage. And you will have sufficient time to explore core and non-core तुमको क्योंकि हम्म। अगर तुम बाद में प्रिपेयर करना शुरू करोगे तो यू विल बी लेफ्ट विद नो चॉइस कि हाँ डीएस जो है वो पढ़ लो, क्योंकि तुमको कंपनी में इंटर्न लगानी है तो वही हम्म। डीएस के पीछे. So, in my third semester, I took a DSA course, which I will strongly recommend क्योंकि अगर तुम basics से learn करना शुरू करते हो तो you will actually know what's going on. I've seen people जो start मतलब immediately जो sheets है उनको लगाना शुरू कर देते हैं. That is okay क्योंकि interview में there are limited on questions only कि वही वो क्वेश्चन पूछेंगे. बट अगर तुमको सच में जानना है कि क्या चल रहा है तो आई थिंक आई रेकमेंड डेफिनेटली रेकमेंड कि तुम एक कोर्स ले लो, क्योंकि वो दे ओके। विल एक्चुअली टेल यू फ्रॉम द बिगिनिंग, तुम्हारे वो बेसिक स्ट्रॉन्ग कर देंगे कि ठीक है ये हो रहा है तो ये क्यों हो रहा है एंड एवरीथिंग. तो मैंने थर्ड ईयर में इट वाज मैं किसी सीनियर से बात किया एंड दे सेड कि टेक अ कोर्स. सो मैंने थर्ड सेम में एक डीएसए कोर्स लिया था दैट आई कंप्लीटेड. उसके बाद थर्ड ईयर में क्योंकि सेकंड सेम तक तुमको पता नहीं होता कोर क्या होता है क्योंकि काफी कम यस बॉस। सब्जेक्ट्स होते हैं. और जो सब्जेक्ट्स है दैट वाज नेटवर्क थ्योरी एंड ईडीसी. आई हैव बीन रियली रियली बैड एट सॉल्विंग सर्किट्स. मेरे को नहीं समझ में आता है कि ये कहाँ फर्स्ट का ईयर में। एग्जैक्टली वो वोल्टेज कैलकुलेट करना. आई यूज्ड टू लाइक इट बट आई वाज रियली बैड एट इट. मेरे को कभी नहीं समझ में आता था. तो आई नेवर थॉट कि मेरे को कभी कोर पसंद आने वाला. बट फिर इन थर्ड सेमेस्टर हम लोग के एनालॉग कम्युनिकेशन सब्जेक्ट आया. फोर्थ सेम में डिजिटल कम्युनिकेशन सब्जेक्ट आया. तो आई काइंड ऑफ लाइक रियली लाइकिंग इट क्योंकि कम्युनिकेशन जो है वो सिग्नल्स इन सिस्टम जो है हम लोगों को मेथावर्स में पढ़ाया था. एंड दैट एट दैट टाइम आई रियली लाइक्ड इट क्योंकि और मेरे को नहीं पता था इसका स्कोप क्या होने वाला है. बट आई लाइक दैट सब्जेक्ट. फिर उसके बाद उसके ऊपर बिल्ड होता गया एनालॉग एंड डिजिटल एंड एवरीथिंग. तो काइंड ऑफ मेरा इंटरेस्ट शिफ्ट होता गया कि सॉफ्टवेयर से लाइक कोर तक. एंड वन मिस्टेक दैट आई डिड वाज थिंकिंग कि कोर और नॉन कोर बिल्कुल सेपरेट है, तो अगर तुम एक में जाओगे तो तुम दूसरे में नहीं जा सकते. ये थॉट तो सबके दिमाग में आता आई है, थिंक ये एग्जैक्टली. सबको ही तो रहती है इसकी आई प्रॉब्लम। थिंक राइट. तो मेरे को लगता है कि अनलेस तुमको ऐसा है कि तुमको बिल्कुल भी सॉफ्टवेयर नहीं पसंद आ रहा है, तुमको बिल्कुल डीएस अच्छा नहीं लगता, तुमने ट्राई किया और फिर तुमको अच्छा नहीं लगा, देन यू कैन लीव इट. अगर तुम ईसी में या फिर कोई भी सर्किट पर ब्रांच है, यू कैन गो फॉर कोर. बट आई थिंक दोनों को ट्राई करना चाहिए साथ में. लेकिन आई नो ओके। डिफिकल्ट होता है एंड हम लोगों के एकेडमिक सब्जेक्ट भी इतने डिफिकल्ट होते हैं ईसी के ईसी डिपार्टमेंट। एग्जैक्टली. सो अगर अगर इफ यू आर लाइकिंग इट तो आई थिंक वो कंटिन्यू करना चाहिए. तो मैंने फोर्थ सेम में एक्चुअली पूरा कोडिंग छोड़ दिया था. और मैंने एक कोर्स लिया था ऐप डेवलपमेंट का जो आई डिड अ लिटिल बिट. बट क्योंकि एज आई सेड डीएसए इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट,
मैं पूरा कोर छोड़ के एंड आई स्टार्टेड ऑन कोर, जो भी सब्जेक्ट्स थे पहले के अभी के सारे सेम्स के आई स्टार्टेड लर्निंग। एंड आई गॉट दिस इंटर्नशिप, बट जब थर्ड ईयर का हम लोगों का इंटर्नशिप सीजन शुरू हुआ, देन आई रियलाइज्ड कि इतनी कंपनीज नहीं है इंटर्न के लिए, कोर के लिए। सो आई काइंड ऑफ गॉट डिसहार्टेंड एट दैट पॉइंट कि मैंने काइंड ऑफ इसलिए क्योंकि मैंने सॉफ्टवेयर भी छोड़ दिया था, इवन इफ आई स्टार्टेड अर्ली, और इसलिए भी क्योंकि कोर की कंपनीज नहीं है एंड आई हैव बीन स्टडीइंग इट सो लॉन्ग। और अब क्योंकि मैंने कोर में इतना पढ़ लिया, तो अब मेरे को सॉफ्टवेयर में भी नहीं जाना है। सो Okay, so that's why you took session in our batch. राइट राइट पहले ही एग्जैक्टली। पता चल जाएगा तुम्हें। हाँ, मतलब एक्चुअली हम लोग के सीनियर बैच में देयर वर नॉट रियली लॉट ऑफ पीपल जो कि स्पेसिफिकली कोर परस्यू कर रहे थे। तो Okay. इवन हमारे बैच में भी कम है, बट देयर आर स्टिल पीपल, एंड तुम्हारे बैच में और या मेरे जस्ट एक जूनियर बैच में आई थिंक देयर आर कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ पीपल जो, क्योंकि कोर का इंटरेस्ट अभी थोड़ा सा बढ़ रहा है, देयर आर पीपल जो कि कोर में इंटरेस्ट है। तो मेरे को लगता है कि गाइडेंस नीडेड है कि अगर तुम जा रहे हो तो तुमको पता होना चाहिए कि what you are getting into, इसीलिए रियलिटी चेक सेशन होने चाहिए। राइट। सो वापस सॉफ्ट में जाने के लिए अभी जो 2 महीने वाला इंटर्न था, इट वाज रियली हेक्टिक फॉर मी। तो मैंने उसमें सिर्फ 2 महीने में वापस अच्छे से, क्योंकि मैंने एक बार पढ़ रखा था पूरा कोर्स, तो इतना मेरे को टाइम नहीं मिला लगा, तो वापस आई गॉट इट कवर्ड, 2 महीने में किया। एंड इवन थर्ड ईयर में आई वाज स्टडिंग मेनली कोर ओनली, बट मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स बना लिए थे उस टाइम, क्योंकि थर्ड ईयर ही मेन टाइम होता है जब तुम अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाते हो। सेकेंड ईयर में नहीं दे नॉर्मल। एक्सपेक्ट कि तुम्हारे पास बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स होंगे, इवन बेसिक प्रोजेक्ट वुड वर्क। अगर तुम फाइनल या प्लेसमेंट्स के लिए बैठे हो तो तुम्हारे पास अच्छे प्रोजेक्ट्स होने ही चाहिए। तो मैंने वो बना लिया था, तो ऑल आई टू डू वाज DSS। And boss, like you have cleared both intern and placement. राइट। So, what is the easiest way to get placed from MNIT Jaipur? ओके, सो आई हाँ, वोंट से कि कोई इजी वे है, बट जो सबसे ज्यादा कन्वीनियंट वे है वो इज डेफिनेटली गेटिंग एन ऑन कैंपस प्लेसमेंट। तो okay. इट डिपेंड्स अपॉन कि तुम किस से सेटिस्फाइड हो, कितना उससे, तो जितना एफर्ट्स दोगे उतना ही ज्यादा हम्म, तुमको मिलने वाला हम्म, है। लाइक इट इज डिफरेंट फॉर गर्ल्स एंड बॉयज। लड़कियों के लिए ऐसा है कि कोर के लिए देयर इज नो बायस। हम्म, जो कोर की कंपनीज होती है, दे हम्म, नेवर बायस बिटवीन विमेन एंड मेन। तो okay. जो जिसको जितना आता है वो उतना हम्म, हायर। जो सॉफ्टवेयर में है तो ऐसा हमेशा नहीं होता है, बट नॉर्मली हम्म, ऐसा कि विमेन हैव एन एडवांटेज। तो सीएस के लोगों के पास ऑब्वियसली कोई ऑप्शन नहीं होता है, बट सीएस ईसी इन लोगों के पास ऑप्शन होता है। तो हम्म, जो अगर तुम्हारे पास ये ऑप्शन है, अगर तुमको थोड़ा भी हम्म, सॉफ्टवेयर अच्छा लग रहा है, तो मेरे को हम्म, लगता है कि यू शुड कंटिन्यू डूइंग कोडिंग, क्योंकि हम्म, तुमको एक एडवांटेज मिल रहा है। तो अगर तुम थोड़ा भी करोगे तो तुमको आसानी से मिल जाएगा। एज फॉर गाइस, ये ऑलरेडी ये वाला बायस वाला सिनेरियो तुमको दिमाग हम्म, में रखना पड़ेगा कि हाँ, मेरे को ज्यादा मेहनत करनी ही है। तो as compared to girls. एग्जैक्टली। और Okay. अभी तुम लोगों का सबसे इजीएस्ट वे तो है अभी हम्म, एंटर कर लो थर्ड ईयर में, जब भी हम्म, तुम्हारा कि वो ऐसा टाइम होता है जब सब लोगों ने प्रिपेयर नहीं किया होता है, काफी कम लोगों ने प्रिपेयर किया होता है। और उस टाइम अगर तुमने कुछ भी प्रोजेक्ट्स बिल्ड कर रखे हैं या तुम्हारा इवन डीएसए भी स्ट्रांग है, तो इमिडिएटली जो कंपनीज है वो यही चाहती है कि क्रीम ऑफ द क्रीम लेयर पहले, जो अच्छी कंपनीज होती है, तो तुम थोड़ा जल्दी स्टार्ट करो। तो वो ही सबसे ज्यादा बड़ा एडवांटेज है तुम लोग का, सबसे इजीएस्ट वे है। आई हैव नेवर सीन, मैंने अभी जो लाइक अभी तो शुरू ही हुआ है प्लेसमेंट सीजन, बट सम टाइम लेटर जो हम्म, लोग जिन लोगों का प्लेसमेंट नहीं लगा, एंड इवन थर्ड ईयर में जिन लोगों का इंटर्न नहीं लगा था, हम्म, उन लोगों yes का boss. आई गेस ये एक ही रिग्रेट था कि दे डिडंट स्टार्ट अर्ली। तो Okay. मतलब ये सब लोगों का ये था कि काश मैं जल्दी स्टार्ट कर लेता या कर लेती। तो आई थिंक अगर तुमको इजी वे आउट चाहिए तो फिर तुमको जल्दी ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। Okay, like in DSA part. हाँ, ऐसे फॉर टेक, राइट। Okay. And one more question was like कि what are those programs that especially for girls like जिनमें गर्ल्स अप्लाई कर सकती हैं और उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट्स मिल सकता है, ऐसे कोई एक दो प्रोग्राम्स?
तो देयर आर लॉट ऑफ प्रोग्राम्स सेकंड ईयर में भी Okay. और थर्ड ईयर में भी और इवन Yes, फाइनल ईयर boss. में। तो Hmm. NXP हैज़ अ प्रोग्राम जो कि विमेन इन Hmm. टेक है, Hmm. and Adobe has She Course, I think. Hmm. Google also has a Hmm. program, Microsoft, Goldman Sachs as well. तो ये Hmm. सारी कंपनीज जो है वो रेगुलरली ईयरली जो है प्रोग्राम्स निकालती है। मिंत्रा का एक हैकाथॉन होता है जिसमें सारे Hmm. सेकंड टू फोर्थ ईयर के Hmm. गर्ल्स जो है पार्टिसिपेट कर सकती है, जो हम लोग अपनी ऑफिशियल मील पे भी शेयर करते हैं। तो Okay. जो भी है उनमें भले तुमको कुछ भी नहीं आता, बट आई थिंक इट इज रियली इंपॉर्टेंट कि तुम पार्टिसिपेट करो। तो अगर तुम Hmm. पार्टिसिपेट करोगे तो तुमको ये रियलाइज होगा कि तुमको क्या नहीं आता है। सो Okay. जो भी ये सॉफ्टवेयर में तो देयर आर लॉट लॉट ऑफ ऑप्शंस। तो ये जो भी जस्ट कीप अ ट्रैक कि ये सब कहाँ क्या हो रहा है, जस्ट रियलाइज कि सेकंड ईयर से ये होने लग जाता है। और Hmm. उसके बाद ये कीप अ ट्रैक ऑफ एवरीथिंग और फिर उसमें Hmm. स्टार्ट अप्लाइंग टू ऑल ऑफ दिस। और तुम एक बार अप्लाई करने लग जाओगे तो तुम्हारी रीच बढ़ेगी, यू विल नो कि और कोर्सेज है। Okay, so ये प्रोग्राम स्पेशली फॉर गर्ल्स है। राइट, ऑल्सो फॉर कोर टेक्सास का विश प्रोग्राम होता है, डोंट मिस इट। जो कोर के लिए स्पेसिफिकली टारगेट कर रहे हैं उनको तो ऑलरेडी इसमें दे नीड टू बी अवेयर कि हम्म। जो होता है अभी तुम लोगों के लिए इट विल बी इन मार्च, रफली मार्च में ही होता है ये इन योर सेकेंड ईयर। तो उसके लिए ऑलरेडी कॉन्टैक्ट द पीपल हु हैव बीन प्लीज्ड, ये जो जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है इसमें, और क्या तुमको सब्जेक्ट्स प्रिपेयर करने चाहिए, एंड इट विल बी बेटर अगर सेमेस्टर के साथ ही वो सब्जेक्ट्स प्रिपेयर करने लग जाओ तो। ओके, सो ये कि मतलब इनकी इंफॉर्मेशन हमारे मेल के थ्रू होगी या फिर हमें ही किसी तरह से कुछ अप्रोच करना पड़ेगा इनको? राइट, कुछ कुछ जो चीजें होती है वो तो कंपनी जो ट्रेनिंग एंड हम्म। प्लेसमेंट है वो देते हैं, जैसे मिंत्रा का हैकाथॉन था या Yes, फिर boss. कुछ गूगल का था। कुछ कुछ है जो वो मिस कर देते हैं क्योंकि दे आर आल्सो हम्म। नॉट अवेयर। तो वो तुम खुद अपने लिंक्डइन पे अप्रोच रखो कि तुम जान सकते हो कि कहाँ क्या हो रहा है ऐसा। हम्म। एंड इफ यू नो तो अपने बैचमेट्स को भी बताओ, ऐसा शेयर शेयर इट विद पीपल। ओके। ओके, सो बॉस, लाइक कोई ऐसी एडवाइस जो आप अपने जूनियर्स को देना चाहते हो, देन व्हाट वुड इट बी? ओके, सो दैट वन एडवाइस इज आई थिंक डोंट बी अफ्रेड ऑफ ट्राइंग समथिंग न्यू। अगर ओके। तुमने कुछ तुम हम्म। एक्सप्लोर करो और तुम जानो कि तुम्हारा इंटरेस्ट किस में है। हम्म। अगर तुम लेट्स से मैं कोर के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ एंड आई सी हम्म। पीपल हु आर गेटिंग इन प्लेस्ड इन सॉफ्टवेयर एंड एवरीथिंग, हम्म। सो डोंट गेट disheartened बाय ऑल ऑफ दैट, क्योंकि इफ somebody else is winning that doesn't mean it's your loss। तुमने जो प्रिपेयर किया है, तुमने जितना काम किया है, यू विल गेट अकॉर्डिंग टू दैट। सो जस्ट बी फोकस्ड ऑन व्हाट यू आर डूइंग एंड अगेन एक्सप्लोर। अगर तुम एक बार हम्म। स्टार्ट करना ही सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है किसी चीज को, हम्म। तो एक बार स्टार्ट करके देखो। फिर अगर तुमको किसी चीज को नहीं कोई अच्छी लगी देन डोंट लीव इट बिफोर इवन स्टार्टिंग दैट थिंग। ओके, सो मतलब एडवाइस यही है कि एक्सप्लोर सब चीजों को करो, और जब तक उसमें मतलब कि पूरा कॉन्फिडेंट ना हो जाए ना कि इसके लिए मैं नहीं बना, तब तक उसको कंटिन्यू करते रहो। ओके, सो बस, सच अ नाइस कॉन्वर्सेशन विथ यू। सेम। एंड एक एक लास्ट क्वेश्चन, हाँ ठीक हाँ, है, है। कि व्हाट इज समथिंग वेयर एमएनआईटी नीड्स टू इम्प्रूव, एंड हम उसे किस तरह से फिक्स कर सकते हैं ताकि हमारे जूनियर्स उसे फेस ना करें? सो मेरे प्रिपरेशन के टाइम वन ऑफ द मेजर थिंग्स आई फेस्ड वाज कि हम्म। कोर के लिए देयर वाज नो गाइडेंस। और कोई प्रोजेक्ट करने का या फिर कुछ जो भी मैं प्रोजेक्ट करना चाहती हूँ, दे कैन आइदर बी इंडिविजुअल प्रोजेक्ट या फिर प्रोफेसर के अंडर कोई। और उसमें भी आई डोंट हैव अ गाइडेंस कि अभी इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, व्हाट कंपनी रियली नीड्स, क्या स्किल्स मेरे में होने चाहिए, वो सब। तो आई गेस नॉन कोर के लिए आई नो देयर है बट कम है, बट आई गेस कोर के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। तो देर देर इज अ नीड ऑफ सम गाइडेंस जो ऑलरेडी लोग हैं हु आर देयर इन द इंडस्ट्री। मे बी कुछ सेशंस जो एलुमनी से हम लोग करवा सकते हैं, या फिर इवन हमारी लैब्स में कुछ ज़्यादा प्रैक्टिकल यूजेस हो सकते हैं एज कम्पेयर टू सिर्फ थियोरी, क्योंकि जो पढ़ रहे हैं उसका पता ही नहीं इम्पैक्ट क्या हो रहा है, क्या क्यों पढ़ रहे हैं। तो आई थिंक दैट could be something which we can improve on. ओके, सो एज अ सेकेंड ईयर स्टूडेंट हम कैसे इसे इम्प्रूव कर सकते हैं, लाइक क्या? So, राइट, तो डिपेंड, अगर इफ यू आर आस्किंग कि कोर में तुमको कैसे इम्प्रूव करना है। हम्म। सो यस। सेकेंड ईयर सबसे पहले तो, क्योंकि अभी तो मान लोगों के जो सब्जेक्ट्स है डिस्टिंक्शन शुरू होने लग जाएगा कोर में, क्या एनालॉग है क्या डिजिटल है।
तो आई रिकमेंड सबसे पहले कि तुम सब्जेक्ट्स क्लास में जितना पॉसिबल है क्लास में अच्छे से पढ़ो कि क्या एक्चुअली है ठीक है। सब्जेक्ट थोड़ा बहुत। हम्म, अगर तुमको क्लास में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आता है तो देन गो एंड रीड बुक्स अबाउट इट, क्योंकि हम्म, सॉफ्टवेयर क्या होता है कि हम लोग नो बडी रीड्स बुक्स इन सॉफ्टवेयर जब तुम कोडिंग हम्म, से। बट कोर में दैट इज एग्जैक्टली अपोजिट, क्योंकि जितना बुक में लिखा है वो किसी यूट्यूब ट्यूटोरियल में या फिर कोई तुमको बता ही नहीं सकता है, इतने ज्यादा नॉलेज है। एंड बुक में क्या होता है बिल्कुल स्टार्टिंग से तुमको एक लेवल पे, हम्म, तो दैट देयर इज अ फन इन रीडिंग दैट। पर्सनली मेरे लिए तो वो बहुत ज्यादा फन था, क्योंकि मेरे को एक्चुअली समझ में आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। हम्म, तो अगर किसी को इंटरेस्ट है तो दे शुड डेफिनेटली गो फॉर द बुक्स कोर में। उसके ठीक है। बाद प्रोजेक्ट्स और रिसर्च इसका ये है कि यू नीड टू फाइंड पीपल अराउंड यू जो हम्म, तुमको एक्चुअली में गुड एडवाइस दे सकते हैं। फॉर मी पर्सनली आई कॉन्टेक्टेड सीनियर्स जो ऑलरेडी प्लेस्ड है या फिर किसी कंपनी में, उन्होंने क्या अपने इंटर्नशिप में ये प्रोजेक्ट्स किए थे, क्या हम्म, स्किल्स यूज किए थे। तो कुछ कुछ होता है जैसे वेरीलॉग है, मैटलैब है, जो yes, हम boss. लोग नॉर्मली पढ़े तो इतना नहीं ध्यान देते हैं, बट दीज आर रियली रियली इंपॉर्टेंट स्किल्स जब तुम किसी कंपनी में जाते हो ऐसे। तो गेट इन कॉन्टैक्ट विद पीपल जो ऐसे सिमिलर चीजें करते हम्म, हैं। एंड मे बी जैसे तुमने ये इनिशिएटिव लिया पॉडकास्ट का, तो कुछ खुद से भी इनिशिएटिव लो, जिससे और भी लोग हैं okay, जो अगर तुमको नहीं मिल रहा है तो और मे बी लोग इंटरेस्टेड होंगे, तो दे विल कम टुगेदर एंड हम्म, यू गाइस विल फिगर समथिंग आउट। तो आई थिंक काफी चीजें हैं जो कर सकते हैं। definitely, boss. या I will try. ओके। Okay, so thank you so much, boss.